So today we are very close to the contents useful for the examination point where we have to work on it. Okay, that is the to decide the maxima minima. Yesterday we learned how to decide maxima minima with the help of graph and with the help of observation. Today so we are going to decide how maxima minima can be decided with the help of derivative. So for its understanding, so slightly I will take the help of the graph also to tell you what is the meaning of that. Suppose this is the graph and this type of graph is to draw. Yes. So these peaks are for ideal maximum. Clear? So now nothing we have to do. Very simple thing I am going to tell you और बहुत अच्छी आप दिमाग में आने वाला है. So करना क्या है आपने? This is what critical point. ठीक. So if we are so critical point and this turning point, what I do the function dash क्या होगा इस पर 0 at the peak point where there will be no change. Where there will be no change. Change is represent the derivative. Change शुरू होगा. And from the starting I am telling you that if one quantity change and we find change in other, so that is written as that is known as derivative. Or simply we write dy upon dx. Change in y with respect to x is written as dy upon dx. So at this point, peak point, there is no change. Turning point, that will be either there, wherever that is. So at, that is your critical point. So at critical point, आप इसको stationary point जैसा होगा ना. अभी आपको सब दिख रहा होगा ना ऊपर को बढ़ रहा है. But at this point, जब peak turn लेगा, so that is the stationary point and then known as critical point. That is called critical point. So at this critical point, derivative is 0. Derivative is. So now tell me. If it is maximum, it is maximum की condition बता. I'm telling you the condition of maximum. Okay, ध्यान रखना. So if this is derivative 0, so after getting derivative 0 and we equate it equal to 0 and we get the value of x, those are called value of x are called critical points. X value critical point बोलते हैं. Increasing decreasing also I told. The value of x are defined as the critical point. क्या? Critical point. So from here. It is turning now. So turning means change हो रहा है. Change हो रहा है तो with respect to this step that is derivative. So once it is this same thing हाँ. Once it is going to derivate, again this is second derivative. फिर derivative हो गया वो. यहाँ से चला यहाँ derivative हो गया. हो रहा है? अब क्या हो रहा है? So now what is happening? This is function double dash x actually. At this point, this is function double dash x. So what type of change we are getting here? Here I am getting what? इसको प्लस से नीचे की तरफ आ रहा है माइनस हो. फंक्शन डेरिवेटिव इसको ये प्लस से माइनस हो रहा है. डजंट मैटर. हमें दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट. विद रेस्पेक्ट दिस मैं बात कर रहा हूँ. ये जो यहाँ से मूव किया, दिस पॉइंट मूविंग एंड यहाँ से पहुँच गया, तो ये सेकंड टर्न आ गया. सेकंड चेंज हो गया. सेकंड चेंज का मतलब सेकंड डेरिवेटिव क्या? सेकंड डेरिवेटिव. तो सेकंड डेरिवेटिव का नेचर क्या है? नेगेटिव. क्या हो रहा है? यानी नेगेटिव से कहां जा रहा है? पॉजिटिव को जा रहा है. या नेगेटिव से कहां को जा रहा है? पॉजिटिव को जा रहा है. मेरी बात समझो. सो इफ इट इज मैक्सिमम ऐसे समझते हो आप, ऐसे समझते हो. एट दिस पॉइंट अगर मैक्सिमम खाली इसको ले लो आप. सो एट दिस पॉइंट इट इज गोइंग टू कहां हो जाएगा? डाउन. डाउन का मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है. कहां जा रहा है? सो अगर आपका डेरिवेटिव फंक्शन आपको फंक्शन डबल डैश x से डिसाइड करना है, इफ इट इज लेस देन 0 और यू कैन से दैट इज नेगेटिव. व्हाट इज दैट? less than 0. ठीक है. If function double dash x is less than 0, so that type of function or that point हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं. इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कोई. ठीक. So अगर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे दैट इज क्या होगा? डबल डेरिवेटिव less than 0 अगर मैं कह रहा हूं दैट इज नेगेटिव हो रहा है. So in that case it will known as maxima. तो उल्टा इंक्रीजिंग में क्या हो रहा था? In increasing we are calculating on function dash निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं? Function dash x greater than 0 इंक्रीज हो रहा है ना. तो दिमाग में रहता है ना मैक्सिमम का. मैंने अगेन आई टेलिंग यू मैक्सिमम और मिनिमम इज नॉट दैट इज क्या कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव. इसको भी मतलब नहीं. इन दिस ग्राफ मैंने आपको बताया था कि दिस इज व्हाट यू कैन से और एक ग्राफ बनाऊं दिस सपोज है ना. सो दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम है ना. मैक्सिमम वाला पॉइंट नीचे है ना. सो इट इज नॉट श्योर दैट कि हम मैक्सिमम कह रहे हैं कि वो ऊपर नीचे आपस में
कोई ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम कह दो ऊपर ही होगा, मिनिमम कह दो नीचे होगा। इसलिए मैंने बताया लोकल मैक्सिमम, बहुत सारे लोकल मैक्सिमम, उन सब में जो टॉप होगा दैट इज क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। कल बात कीजिए हैं। सो नाउ दिस इज डेरिवेटिव मेथड से हमने डिसाइड करना है। ये सेकंड डेरिवेटिव मेथड कौन सा मेथड है? एक फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है, अगर सिलेबस में आपने होगा उसको बताऊंगा मैं, ठीक है। टू डिसाइड मैक्सिमा और मिनिमा, सो वी आर हैविंग टू टेस्ट, 4 हो गए टोटल। ग्राफ मेथड आप देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक। डेरिवेटिव के दो है, दिस इज जो एक्चुअल आपको यूज करना है, दिस इज इजीियर है, जो विच इज द इजीियर मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इससे जो है आपको क्या डिसाइड करना है, आई एम राइटिंग डबल टेस्ट में, व्हाट आई एम राइटिंग डबल टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन दैट एट दिस क्वांटिटी मैक्सिमम और मिनिमम। अगर डबल डेरिवेटिव करने पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैक्सिमा, दैट इज मैक्सिमा, दैट इज मैक्सिमा। और अगर फंक्शन डबल डैश x is greater than 0 that is minimum। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। थोड़ा उल्टा है, जो हम मैक्सिमम में समझता बड़ा है दिमाग, मैक्सिमम का मतलब बड़ा ही है, फीलिंग आती है ऐसी, वो से मतलब नहीं है, जस्ट उल्टा है, दैट इज बिल्कुल उल्टा है। इफ यू हैव टू डिसाइड दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव आ रहा है तो दैट पॉइंट विल बी मैक्सिमम। क्या होगा, बात क्लियर आ गई? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। दिस इज चैप्टर लाइक एलपीपी। एलपीपी में आपने इक्वालिटी लर्न की थी, एंड उसके बाद आपका क्या था, वर्ड प्रॉब्लम भी था, क्या था। सो हियर आल्सो विद द सिंपल सिचुएशन के अलावा आपके पास क्या वर्ड प्रॉब्लम भी होगा, क्या होगी, वर्ड प्रॉब्लम। क्या ऐसा बोल हुआ है भाई, फंक्शन x इक्वल टू 6 चलो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, दिस इज द फंक्शन, है ना। सो वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमा और मिनिमम, पता नहीं। सो मैक्सिमा और मिनिमम विल डिसाइड, क्या कैसे डिसाइड होगा, मैक्सिमम विल बी डिसाइड द फंक्शन डबल डैश x इज आपका होगा क्या, लेस देन 0, लेस देन 0 से डिसाइड नहीं होगा, लेस देन 0। इफ इट इज 0 देन हम फिर सेकंड के वो 0 आएगा, और तीसरा वाला s क्लियर करो आपको मैं, फंक्शन डैश x इज 0, फंक्शन डबल डैश x इज 0, और फिर अगर दो 0 आ गया हम विल गो फॉर दैट ट्रिपल डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर में जाएंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तब क्या होगा, इन्फ्लेशन, क्या होगा, इन्फ्लेशन, पता है ना। सो वो बात कर दो, आपके ज्यादा सभी भी है, बट एक नंबर में हो जाएगा तो इसका है ना। सो कीप इन माइंड। सो इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैव टू रीच अप टू कहां तक, अप टू सेकंड डेरिवेटिव, अप टू वेयर फर्स्ट इज यूज्ड फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो फिर क्या डबल डेरिवेटिव करेंगे, और वो जो पॉइंट आए हैं उन पॉइंट को उसको रखेंगे। क्वेश्चन कर रहा हूं मैं भी, क्लियर हो जाएगा सारी बात, है एकदम सब आपको करना है, ये आपको याद रखना है बस। If this situation is there, that is maxima, and if this is greater than 0, that is बस। This is the thing you have to keep in your mind, यहाँ कंफ्यूज मत करना। Increasing decreasing में अगर आप writing C, function dash x is greater than 0, increasing, function dash x is strictly मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट जो हो जाए, so कंफ्यूजन ना हो। And this is decreasing, this is क्या बढ़ रहा है, देखो इंक्रीज का मतलब दिमाग में बढ़ रहा है, सर ये तो फीलिंग है, डिक्रीज का मतलब घट रहा है, ये फीलिंग है। सो मैक्सिमा मतलब सबसे बड़ा ही है। सो हियर दिस यहां उल्टा हो रहा है, मैक्सिमा कब हो रहा है, जब फंक्शन डबल डैश x इज नेगेटिव, है ना, दैट इज 0 मींस नेगेटिव एंड ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, है ना। दिस इज व्हाट इट इज नेगेटिव एंड इट इज व्हाट, क्लियर आपको है। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज गिवन। सो एनी क्वेश्चन इन योर बुक यू सी, चलो इसको कर लेते करेंगे ना। So now first step is, if you have to calculate, you have to find out maximum minimum, first step you go for derivative, second step critical point उसको 0 के बराबर रखेंगे, we will get the value of x, value of that is critical point, and then we will go for double derivative, and double derivative में x की वैल्यू रखेंगे तो we will get that is वैल्यू भी आ जाएगी, और क्या है मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड हो जाएगा, मैक्सिमम है या मिनिमम। सी what is the function dash x here, 6x plus 2, simple. So now for critical point, for critical point, say then 6x plus 2 equal to 0, 6x equal to minus 2, so x equal to minus 2 upon 3 or not, sorry, 2 upon 6, that is minus 1 upon 3 or not? Yes sir. Am I right? Yes sir. Are you active? So what I am saying, डेरिवेटिव ठीक हो रहा है,
Then for critical point क्या इक्वल्स टू 0 over effect 2. So 0 over effect तो -2 and -1/3. तो यहाँ पे बात समझ आ गई. So now after getting the critical point, now this is the point where the value of this function will be maximum या minimum नहीं पता नहीं. Value होगी या तो maximum होगी या minimum होगी. Now okay, for that what you have to do? क्या बताना है आपको? Double derivative. What is that? Function double dash x is equal to what? तो बहुत सिंपल हो गया, मजा आ गया. ये फंक्शन डैश है ना, डबल डेरिवेटिव. फिर करते हैं इसका डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर वाले का. सो 6 आ गया. तो आपको कुछ x की वैल्यू रखनी. एक सपोज 6x आता, तो 6x आता. सो दिस वैल्यू शुड आई पुट हियर. लेकिन x आई नहीं ना, मजा आ गया. सिंपल है. दिस इज दैट्स व्हाई इट वाज वेरी सिंपल, है ना. तो आपके क्वेश्चन में x वाले भी आएंगे, क्रिटिकल आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपके है नहीं, मजा आ गया. सो नाउ सी इट इज 6 ओनली. सो कुछ करना ही नहीं आपको. 6 इज ग्रेटर देन 0. फंक्शन डबल x 6 है ना. फंक्शन डबल x इज ग्रेटर देन 0. दैट इज क्या? मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम. व्हाट इज दैट? हेंस आपका हो जाएगा फंक्शन x will be minimum at x equal to minus 1/3, है ना. So now minimum, what is the minimum value? उसके लिए आपको this value को आपने क्या रखना है? फंक्शन क्या रखना है? वैल्यू फंक्शन की आएगी, ठीक है ना. सो x फंक्शन डैश x से क्रिटिकल पॉइंट है. डबल डेरिवेटिव्स ने डिसाइड किया कि मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, एंड देन अगेन फंक्शन बताएगा कि क्या है वो, व्हिच वैल्यू. ऐसा भी हो सकता है. यहां तक तो हमारा ये हुआ कि यस इट इज मिनिमम. अब मिनिमम वैल्यू कितनी है? जैसे मैंने क्वेश्चन किया था, हमने कहा जैसे 1 से लेके आगे 1 से लेके इंफिनिटी है, तो मिनिमम वैल्यू कौन हो गई थी? कल ऑब्जर्वेशन किया था ना. मिनिमम वैल्यू यहां से लेके यहां तक हुई, बट मिनिमम वैल्यू जो. So here also x की यहाँ x this will give the critical point. Function dash x is giving critical point, and then double dash is giving nature minimum है या अब कितना है उसके लिए आप again will put the value here. That is function minus 1/3 is equal to what? 3 into minus 1/3 square plus 2 into minus 1/3 and plus 4. Solve. So now 3 and it is what? 1/9 minus 2/3 and plus 4. So the 3 is up. So 1/3 and 2/3 minus 1/3 is plus 4. सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेंगे आप लोग. So ऊपर लिख देता हूँ, प्रॉब्लम आ रही है. minus 1/3 plus 4/1 it is 3 and it is minus 1 plus 12. So it is 11/3 is its maximum value. Maximum value am I right? No. Minimum value. What will it? At x equal to minus 1/3. At x equal to minus 1/3, its minimum value is 11/3. जो कैलकुलेट करना है. स्टेप समझ में आ गए? स्टेप समझ में प्रॉब्लम नहीं आती. एंड व्हाट प्रॉब्लम के लिए बताऊंगा कैसे करना है. वो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं. कॉपी विदिन द 2 सेकंड. देन आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. Can I have it? Function x equal to 3x square minus 4x plus 2. I think this is a question from your book. 3x square minus 4x plus 2. First step is function dash x. It is what? 6x minus 4. For critical point. For next step is for critical points, what will be 6x minus 4 equal to 0. So x will simplify to 2/3. It will be what will be 2/. The critical point is now known. 2/3. क्या करना है? डबल डेरिवेटिव. That will decide maximum या minimum. फिर वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 6 हो जाएगा. Okay, very good. So next step is double derivative. Function dash function double dash x. Function
डबल डैश x इज इक्वल टू क्या करेंगे हम? व्हाट विल बी? ये भी यार वेरी सिंपल यार, 6 ओनली 6 is not greater than 0 means at सीधे लिखो at x equal to 2/3 function x will be minimum. It is, and what is minimum value now? f 2/3 will calculate. What will calculate? 2/3 है ना? So it is 3 into 2/3 square minus 4 into 2/3 and it is what? Plus 2. So now what will be? It will be 4/3. It is minus 8/3 and it is plus 2 upon 1. It is what? 3. It is 4 minus 8 plus 6. So that is minus 2/3 is its minimum value. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा उसको ये क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, can I repeat? Okay, now next question is one question you dictate question. First of all tell me function 1/2 function x equal to 1/2 minus x whole square minus x cube to the square whole square plus x cube plus x cube on minus 2 and 2.5 2.5. This is the interval, open or close? close. Close means 2 and minus 2.5 will be also included, है ना? close होना ही है. So steps are same. What you have to do in this question, what he want absolute maximum or absolute minimum value. क्या चाहिए उसको? So during the previous discussion, so what I told that if there are various local maxima or minima and this ये तो mathematical, which is the topmost, that is absolute. उसमें बहुत various there are many yesterday in graph I told there are many local maxima and there are many local minima. ठीक? And in case of I told that in case of the maximum value जो उसकी that is called absolute maxima और जो सबसे छोटी होती है that is absolute minima. बात समझ गई? तो जब absolute minimum maximum है तो उसमें हमें ये minimum maximum डिसाइड नहीं करना है. मेरी बात समझ क्या कह रहा हूँ? If there is a problem on absolute maxima and absolute minima तो हमें ये वाला नहीं करना है क्योंकि we will calculate all the values. We will calculate जो में सबसे बड़ी absolute होगी सबसे छोटी minimum. Clear simple? Any doubt? You अनुष्का सही के लिए बात सुना रही क्या what I told? In case of absolute maxima or absolute minima, don't go for this one. ठीक है? So means calculate all the values और all the values में जो सबसे बड़ा that is absolute, least one is absolute minimum. Clear हो गया? So now and for finding the values, two values are already given. Two values are already given. So now with the help of these means two values actually critical point हो गए. है ना? In yesterday's graph I told how many critical points ग्राफ के साथ कितने critical point थे? इसी में देखो how many critical points थे? One peaks are peak है ना? Bottom जो भी है 1 2 3 4 5 6 और फिर so many are there. So many values actually are getting. उन values को आपने सीधे सीधे कहाँ रखेंगे फंक्शन में? So जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी that is absolute maxima, I mean least value will be simple. जिसमें करना समझिए ना
अगर आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तब डबल डेरिवेटिव पे जाना है। एब्सोल्यूट वाले में क्या करना है, ऑल द वैल्यूज में से ढूंढना है। तो पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव पे सुनो ये वाला। So first step is that is derivative, then critical point, then all the critical point including this, दो ये भी होंगे नहीं, सिंपल वाली बात कर रहा है। So now derivative बताओ, 2 1 ये दो this whole x x की पावर n में 2 आगे से सिंपल है ना, प्लस आ रही, and then इसका कितना होगा, प्लस 3x स्क्वायर। तो सिंपल कितना हो जाएगा, इट इज -1 है ना, प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सही है ना, सही है ना, अरे सही है। 2 1 जा 2 से 2 काट 1 हुआ, एंड माइनस भी है तो -1, 2x माइनस है तो प्लस 2x और ये 3x, अच्छा ठीक है ना, इट इज राइट ना, 3x स्क्वायर। सो नाउ इसको थोड़ा सही ऑर्डर में लिख देते हैं। सो इट विल गिव व्हाट, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म की बात आ गई, मिडिल टर्म बताइए जल्दी। सो व्हाट विल डू, बोलो, 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, क्लास 9 की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, -1 इक्वल टू 0। So I am not explaining steps, directly I am writing because you are very well familiar about these steps, है ना, middle term studying. So it is 3x is common, यहाँ x plus 1 minus 1 is common, it is x plus 1 is equal to 0. तो दोनों में सेम आ जाए तो उसकी पहचान है correctness की। So x plus 1 and 3x plus 1 sorry minus 1 is equal to 0. So what are the value x you are getting? Value x. So x equal to that is -1 and 1 by 3. These are two. So now we have to decide whether these values are lying in this or not. इसमें आ रही है। तो how many total points are 4, है ना। अगर out of suppose x की वैल्यू 5 आ जाती, क्या आती है x की वैल्यू 5 आ जाती। So 5 इसमें लाई नहीं कर रहा है, so उसको इग्नोर कर दें। क्या कर देंगे, you have to take only all the values of x which are satisfying this interval. So here how many values are there, 4। तो अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, 1 by 1 we will calculate first सबसे छोटा वाला फंक्शन -2। व्हाट इज फंक्शन -2, इसी में रखेंगे, देखो 1 by 2 -2 and that is -2 का क्यूब, ये फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू फंक्शन -1, फंक्शन आपकी वैल्यू x आती है 4, है ना, तो -1 लिखो, फंक्शन -1 is equal to what, 1/2 minus 1 square plus -1 का क्यूब। सॉल्व करोगे and then next value is function 1 by 3 plus आ गया, function 1 by 3 that is what, 1 by 2 minus 1 by 3 square and minus and plus that is 1 by 3 का क्यूब। थर्ड वैल्यू and fourth value is f 2.5। what is that, f 2.5। so you will calculate all the values, आपकी वैल्यू आएंगी। So among them जो सबसे बड़ी होगी that is absolute maximum और जो सबसे छोटी होगी that is absolute minimum, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, बट योर कंफ्यूजन विल वेरी शॉर्टली इट विल बी रिमूव। और जब प्रैक्टिस करोगे फिर मैं अगेन आई विल डिस्कस द क्वेश्चन, कल बात करेंगे, है ना, अभी वर्ड प्रॉब्लम करनी है, तो फिर ये इट विल वेरी इजी फॉर यू, क्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लीन। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार मैक्सिमा है मिनिमा है मिनिमम, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट और क्या करना है आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ आ रही मेरी बात नहीं आई, चलो बाय।